Hello students, this is Rohan Khanna and I am back with another video today, and the topic is again pro rata allotment, forfeiture of shares. One topic which is very important for the questions which will come in the board examination. इस क्वेश्चन में एक और एडिशनल फीचर है जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं। जब फोरफीचर के बाद री इश्यू होता है और अगर पार्शियल री इश्यू आ जाए, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें दो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों के शेयर्स फोरफीट होंगे और आगे जाकर री इश्यू भी होंगे, और इन दोनों के शेयर्स जब री इश्यू होंगे उसमें भी पार्शियल री इश्यू आएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आई विल आस्क यू, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, कुछ कमेंट्स करना चाहें, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए, so that I can answer them and your doubts can be solved. So let's start the question. The question says, H Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable rupees 6 on application, rupees 3 including premium on allotment, rupees 2 on first call and rupee 1 on second and final call. तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस इसकी 12 रुपए हो गई। Applications were received for 30,000 shares. Applications for 6,000 shares were rejected and their application money was refunded. 6,000 एप्लीकेशंस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को उन्होंने प्रोराटा अलॉट किया होगा। Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants and their excess money was adjusted towards sums due on allotment. तो जो भी excess money बचा जब आपने remaining applicants को pro rata basis पे share allot किए, तो वो जो adjust पैसा बचा उन्होंने adjust किया towards allotment. अब कुछ cases हैं हमारे पास। A, who was allotted 500 shares failed to pay allotment money and on his failure to pay the first call, his shares were forfeited. Case number 2, S, the holder of 600 shares, failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after making the second and final call. तो 2 forfeiture हो गए इसमें और 2 शेयर होल्डर हैं मिस्टर ए जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स फोरफीट हो गए, और दूसरे शेयर होल्डर हैं मिस्टर एस जिन्होंने 2 कॉल्स पे नहीं की और उसके बाद उनके शेयर्स फोरफीट किए गए। ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 800 shares were reissued, including 300 shares of A and balance of S. So now we have 2 reissues and here we have partial reissue in case of both the shareholders. हमने देखा कि A के 500 शेयर्स उनको अलॉट थे, उसमें से 300 शेयर्स रीइश्यू होते हैं और मिस्टर एस के 600 शेयर्स अलॉटेड थे, उनके 500 शेयर्स रीइश्यू होते हैं, तो दोनों में ही पार्शियल रीइश्यू है। So their shares were reissued as fully paid up for rupees 6 per share. So now let's generalize the sum. So we begin first of all with the pro rata table so that we can adjust the shares pro rata allotment. क्वेश्चन में बोला गया था कि 30,000 शेयर्स टोटल आए थे, उसमें 6,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया गया था, उनको अलॉटमेंट नहीं किया गया। तो शेयर्स अप्लाइड 6,000, no shares were allotted, but they must have sent the application money which was rupees 6 per share, so company received 36,000 rupees. Because no shares were allotted, so no application money is adjusted in the pro rata table. Excess application money, as you know, is this amount minus this amount, so that is 36,000. Because no allotment is there, so this money will be refunded and transferred to bank. Second case is out of 24,000, 6,000 को हमने मना कर दिया, अब बच गए 24,000। 24,000 को मैंने शेयर इशू करने क्वेश्चन में 20,000 वो अलॉट किए। सो 24,000 के हिसाब से हमारे पास आएंगे 1,44,000 रुपीज, जिसमें से मैंने 20,000 को शेयर्स उनको अलॉट किए हैं, तो ऑब्वियसली 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा, वो होगा 1,20,000। सो 144,000 रुपीज आए, 1,20,000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो मेरे पास एक्सेस पैसा बच गया 24,000, जो एज पर द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन विल बी
adjusted towards allotment. So ये 24,000 is transferred to allotment. इसको आप टोटल करें, जैसे है यहाँ पर टोटल आता है 30,000 यहाँ पर, 20,000 सेकेंड कॉलम में, 1,80,000 in the third column, 1,20,000 in the fourth column. अब बचे मेरे पास 60,000 रुपीज एक्सेस में, उसमें से 24,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट में एंड रिमेनिंग 36,000 हैव बीन ट्रांसफर टू बैंक बिकॉज वो रिफंड होंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नल. पहली एंट्री होती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. Okay, we know this that this is the amount which is transferred as per the third column of the pro rata table. So 1,80,000 is to be transferred here. Cross check करने के लिए we can also say the number of applications which the company has received multiplied by the application money. So being application money received 30,000 into 6 rupees जो हमारे application का था. Second entry will be for transferring this application money to share capital and adjusting it into share allotment and refunding something. जो हमारा अमाउंट आया इसमें, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो पहले हमने डेबिट किया क्रेडिट किया था यहाँ डेबिट करेंगे 1,80,000 एंड देन स्टार्ट एडजस्टिंग दैट अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करना है हमने शेयर कैपिटल में, उसको जितने भी शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है 20,000 into the application money ₹6. So 1,20,000 that is column number 4 of the pro rata table यहाँ ट्रांसफर होता है. टू शेयर अलॉटमेंट, अब जो पैसा मैंने एक्सेस जो पैसा आया था मेरे पास उसे एडजस्ट किया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया. यहाँ पर हमने किया था ट्रांसफर 24,000 और 6,000 शेयर्स कंपनी ने उनको अलॉट नहीं किए तो उसके 36,000 रुपीज हमने रिफंड कर दिए. नेक्स्ट एंट्री डील्स विद दी अलॉटमेंट एडजस्टेड, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू. जो हमारे पास अलॉटमेंट ड्यू आती है हमने उसके बारे में बात करना है. सो हमारी इसकी एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इसमें प्रीमियम है इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. So the number of shares which the company has issued to the public is 20,000. 3 रुपए के अलॉटमेंट है, so 20,000 into 3, 60,000 यहां पर आते हैं. 1 रुपए की अलॉटमेंट है और 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 20,000 into 1 and 20,000 into 2, 40,000 यहां पर होते हैं. Being allotment money due. So now after allotting the shares to them, we send them these letters of allotment as well as make the money on allotment due. हम लोग को लेटर भेज दिए और हमारे जर्नल में हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया. अब बारी आती है फॉर द एंट्री व्हेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, जब कितना अमाउंट अलॉटमेंट पर आया वो हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें. सो गाइस इसमें हमने जब निकालना है अमाउंट कि अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ, अब क्योंकि क्वेश्चन में जाकर हमारे पास आगे जाकर 4 फीचर है, क्वेश्चन प्रो राटा था 4 फीचर हुआ है, तो वी हैव टू फॉलो अ सीरीज ऑफ 3 स्टेप्स जिस पर लास्ट एक वीडियो में बना चुका हूं. आपने शायद पहले देखा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं. और उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने 3 स्टेप्स फॉलो करके वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज रिसीव्ड अल्टीमेटली ऑन अलॉटमेंट. तो उसका जो पहला स्टेप है दैट इज टू कैलकुलेट excess application money adjusted towards allotment. तो जो हमारे पास excess application money होता है उसे हमने एडजस्टमेंट जो करना है टुवर्ड्स अलॉटमेंट कैसे करना है, ठीक है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर्स अलॉटेड. So here we write the pro rata which we had in the initial stage of the question. वहां पर था that मेरे पास जो pro rata था that was 24,000 shares were applied and I allotted 20,000 shares. ठीक है, ये मेरा pro rata था, उस यहाँ लिखेंगे हम लोग because we have to calculate the excess application money
विच इज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है, वो निकालने के लिए। सो प्रोराटा सीरीज हम देखें, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। इस केस में मेरे पास थे कि इस मिस्टर ए को 500 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो ही वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स एंड आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी शेयर्स डिड ही अप्लाई फॉर। तो ही मस्ट हैव अप्लाइड एंड द कैलकुलेशन वुड बी 500 into 24,000 divide by 20,000, so that will come to 600. So 600 शेयर्स इस शेयर होल्डर ने अप्लाई किए होंगे और उसको 500 शेयर्स अलॉट हुए। सो नाउ वी कैलकुलेट कितने एक्सेस शेयर्स आए हैं। हमारे पास आए हैं 100 शेयर्स जो एक्सेस हैं। इस पर हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सो दैट इज ₹6। तो मेरे पास ₹600 is the excess application money which is adjusted towards allotment, ठीक है। अगर हम इसको, ये एक शॉर्ट स्टेप था जो बहुत आसानी समझ सकते हैं, इन केस थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो इसको एक थोड़ा सा लंबा सा स्टेप भी देख लेते हैं कि जब 600 शेयर्स अप्लाई किए थे मिस्टर ए ने, तो उन्होंने 600 शेयर्स के साथ अपनी एप्लीकेशन मनी भेजी होगी जो है 600 into 6 ₹3,600, और उनको मैंने उसमें से 500 शेयर्स अलॉट किए, तो मैं कितना पैसा एडजस्ट करूंगा 3,000, तो 3,600 माइनस 3,000 तभी 600 बचेंगे। हमने बेसिकली क्या है कि जितने शेयर्स ये हैं 600 माइनस 500, जितने भी एक्सेस शेयर्स हैं 100 इंटू एप्लीकेशन मनी ₹600, ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप हमारे पास है टू कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। Now in this case guys, हमने देखना है कि कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं आई थी। तो हमने यहां कहा कि 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट मनी है ₹3 का, तो ₹1,500 हमारे पास नहीं आए ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें से ये जो ₹600 हैं ये हमने पहले से ही एडजस्ट किए थे, तो ये हमने माइनस कर दिए। सो नाउ ₹900 इज जो मैंने अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं करे, जिसे हम कॉल्स इन एरियर्स भी कहते हैं, या हम कहें कि अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय द शेयर होल्डर। सो दिस इज द अमाउंट। गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहां पर, दैट इज बेसिकली डीलिंग विद द एडजस्टमेंट ऑफ दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। द रूल सेज दैट व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम and that premium is payable on allotment, so then this excess application money is first appropriated towards share capital and the balance अगर कुछ बचता है by chance, so that is adjusted towards securities premium reserve। हमने सेम यहां पर भी फॉलो होगा रूल। अब यहां देखो हमारे पास क्या है कि मेरे पास यहां पर ₹1,500 जो हमने कहा कि अलॉटमेंट पर नहीं आए, ठीक है, और ₹600 मैंने उसमें से यहां पर एडजस्ट कर दिए। अब इन 600 में से अगर हम देखें तो कितना अमाउंट हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं और कितना बचा हुआ बैलेंस हम एसपीआर में एडजस्ट करेंगे। बिकॉज जब हम एंट्री करेंगे फोरफीचर की तो वहां पर हमें एसपीआर को डेबिट करना, बिकॉज रूल है इन केस प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है, शेयर्स आर फोरफीटेड, सो यू कैन डेबिट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो how much amount of premium has to be debited in the forfeiture entry, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप करते हैं यहां पर हम लोग। मैंने जब ₹600 यहां पर रिसीव किए थे तो इन 600 में से बेटा ₹500 जो हैं वो अलॉटमेंट के एडजस्ट किए, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की थी ₹1 की, ठीक है, और 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं आई थी, तो हमने जो यहां पर एडजस्ट किया है आउट ऑफ दिस 3 ₹1 मेरा अलॉटमेंट का है और ₹2 प्रीमियम के हैं। तो पहले जैसे रूल कहा कि अगर एक्सेस एडजस्ट करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो पहले इसमें से हम एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और अगर कुछ बैलेंस बच गया सो दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स प्रीमियम, ठीक है। तो यहां पर आउट ऑफ ₹600 हम ₹500 एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो 600 माइनस 500 हमने टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट किए, और ₹100 जो बच गए दिस इज नाउ एडजस्टेड टुवर्ड्स प्रीमियम, टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व।
दैट मीन्स आपने जब सोचोगे, जब एंट्री करोगे, एसपीआर को डेबिट करोगे फोर फीचर में, तो आप बोलोगे कि 500 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम 1000 रुपए ड्यू है मिस्टर ए से, वो नहीं आया, लेकिन इस 1000 में से हमने 100 रुपए एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब आप प्रीमियम को डेबिट फोर फीचर के एंट्री में कितना करोगे, ₹900। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट करना है और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट नहीं आया है, प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम द शेयर होल्डर, सो कंपनी कैसे इस एक्सेस मनी को एडजस्ट करेगी? तो इसमें से पहले हम एडजस्ट करते हैं मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब 500 शेयर्स हैं और क्योंकि अलॉटमेंट सिर्फ 1 रुपए की है आउट ऑफ दिस 3, 2 रुपए का प्रीमियम है और 1 की अलॉटमेंट है, तो हम पहले उस अलॉटमेंट को एडजस्ट करेंगे आउट ऑफ दिस ₹600, हमने यहां कर लिया 600 माइनस 500, 100 रुपए अभी बच गए हमारे पास। ठीक है, वो मैंने एडजस्ट किए टुवर्ड्स एसपीआर। तो अब जब हम डेबिट करेंगे एसपीआर को फोर फीचर की एंट्री में, सो दिस विल नॉट बी ₹1000, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव रिसीव्ड ₹100 which was adjusted here, so now ₹900 are due from A, and this amount will be debited in the forfeiture entry in the account of SPR. So now the third step, that is to calculate amount received on allotment. अब allotment पर आखिरकार हमने कितना अमाउंट रिसीव किया शेयर होल्डर से। पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 60,000 रुपीज। इसमें से स्टूडेंट्स हमने जो प्रोराटा टेबल जब बनाया था, तो अलॉटमेंट कितनी एडजस्ट की थी? एडजस्टेड अलॉटमेंट was ₹24,000, so that is 36,000 माइनस अलॉटमेंट नॉट रिसीव, जो हमने इनमें 3 स्टेप्स किए हैं, उसमें सेकंड स्टेप में जो अलॉटमेंट रिसीव हमने नहीं करी वो थी ₹600, 1500 माइनस 600 ₹900, सॉरी ₹900। तो नाउ allotment which we have received and now which will be credited to the bank to share allotment account, that will be 35,100. So bank account debit to share allotment 35,100. Now Mr. A, हमने क्वेश्चन में देखा था, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की थी अपने शेयर्स पर, और ये जो उनके जो शेयर्स हैं 500, इस पर इनकी फर्स्ट कॉल नहीं आई, और मिस्टर एस ने भी अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो टोटल हमारे पास है 500 प्लस 600, 1100 शेयर्स, जिस पर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब यहाँ दोनों एंट्रीज में करेंगे। पहले हम ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट कॉल हमारे 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से होगी 40,000 ड्यू। अब इसमें से हमने 500 प्लस 600, 1100 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 2,200 रुपए रिसीव नहीं करे। ठीक है, वो कॉल्स इन एरियर्स हो गए। तो हमने रिसीव कितने किए? 40,000 माइनस 2,200, that is 37,800. So this is the amount which we have received. Now after the first call, the shares were forfeited as per the question. So now this is the forfeiture entry. Share capital account debit, SPR account debit, to share forfeiture, to share allotment, to share first call. So हमारे पास इस टाइम हम जो forfeit कर रहे हैं वो 500 शेयर्स हैं। तो 500 शेयर्स पर कॉल्ड अप मनी है। कॉल्ड अप मनी इस केस में हमारे पास है ₹9, ₹6 की एप्लीकेशन, ₹1 का अलॉटमेंट, ऑब्वियसली प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें, और ₹2 की फर्स्ट कॉल। सो वी हैव ₹9 कॉल्ड अप। यहां पर आएंगे 4,500, 500 इंटू 9। एसपीआर में हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी कि हमने जो ड्यू करने, जो अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, वो है 500 इंटू 2 रुपीज। सो 1,000 रुपए रिसीव नहीं करे हैं, तो वही ड्यू हैं मिस्टर ए से और वही डेबिट होने चाहिए। लेकिन वी हैव सीन एज अ रूल कि हमने 100 रुपए को एडजस्ट किया था जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से टुवर्ड्स प्रीमियम। सो 1000 ड्यू थे, 100 रुपए एडजस्ट हो गए, तो यहां पर आएंगे ₹900 विच आर नाउ स्टिल ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए टू शेयर forfeiture, वो अकाउंट जिसमें अमाउंट रिसीव्ड आता है। हमारे पास 500 शेयर्स पर कितना अमाउंट आया था? ₹6 के हिसाब से 3,000 रुपीज। ठीक है, प्लस हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हम जो करते हैं, जो हम 3 स्टेप्स निकाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अलॉटमेंट अमाउंट, तो जो फर्स्ट स्टेप था वो था टू कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी
एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो वहां हमने किया था कि 600 शेयर्स अप्लाइड थे और 500 शेयर्स अलॉटेड थे और 100 रुपए के एक्स्ट्रा शेयर्स में 600 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आए थे। नॉर्मली वही अमाउंट ऐड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हम अलॉटमेंट का अमाउंट प्रीमियम से कम है, अलॉटमेंट का अमाउंट स्टूडेंट्स प्रीमियम से कम है, तो यहां पर हमने उस 100 रुपए को जो एडजस्ट किया टुवर्ड्स एसपीआर वो माइनस करेंगे 600 में से, तो यहां हम प्लस करेंगे 500, वरना यहां पे आना चाहिए था ₹600 जो हमारे फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था। ठीक है, नॉर्मली वही ऐड होता है। तो 500 इंटू 6 एप्लीकेशन मनी प्लस 600, लेकिन यहाँ 600 नहीं करेंगे, ₹500 करेंगे बिकॉज वो 100 हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, वरना यहाँ 1000 आता। ठीक है, वो 100 यहाँ एडजस्ट किए, इसलिए यहाँ पर हमने 500 ऐड करेंगे और यहाँ पर आएगा 506 3000 प्लस 500 3500। 900 रुपीज अलॉटमेंट के रिसीव नहीं किए थे, हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था, और 500 रुपए इंटू 2 रुपए की फर्स्ट कॉल 1000 रुपए हमारे पास यहां पर रिसीव नहीं हुए, तो हमने जो उसको क्रेडिट कर दिया। सो नाउ द सेकंड कॉल विल बी मेक ड्यू। अब क्योंकि 500 शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए हैं और जो शेयर्स फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल उससे रिड्यूस हो जाता है। 20,000 शेयर्स थे हमारे पास, 500 शेयर्स फोरफिट कर दिए, तो अब 19,500 शेयर्स पर हम सेकंड कॉल की ड्यू करेंगे। ₹1 की सेकंड कॉल है, तो 19,500 इंटू 1 दैट इज शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 19,500 हमने ये ड्यू कर दिया। अब 600 शेयर्स मिस्टर एस के थे, द होल उनको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, उन्होंने अपने 600 शेयर्स पर सेकंड कॉल पे नहीं करी, इसका मतलब 600 इंटू 1 उन्होंने ₹600 पे नहीं करे जो कॉल से एरियस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए 19,500 ड्यू थे, 600 रुपए उन्होंने पे नहीं किए, कंपनी रिसीव नहीं किए, तो कितने रिसीव किए होंगे? 19,500 माइनस 600 18,900। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 18,900 दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एस। नाउ द टाइम फॉर द सेकेंड फोरफीचर। मिस्टर एस के शेयर्स हमने फोरफीट किए थे आफ्टर सेकेंड कॉल। अब सारे के सारे शेयर्स कॉल्ड अप हो चुके हैं, तो अब 600 इंटू कॉल्ड अप मनी वुड बी ₹10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर हमने क्या रिसीव किया अब तक? हमने रिसीव किया मिस्टर एस के केस में एप्लीकेशन मनी एज वेल एज अलॉटमेंट मनी। बिकॉज अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, सो प्रीमियम भी रिसीव हो गया, एंड वंस प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड इट कैन नॉट बी डेबिटेड, सो प्रीमियम अमाउंट विल बी एक्सक्लूडेड। सो ₹6 एप्लीकेशन के, ₹1 अलॉटमेंट का, सो हमने 600 शेयर्स पर रिसीव कर लिए हैं ₹7, सो दैट इज 4,200। शेयर फर्स्ट कॉल हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है ₹2 की, सो 600 इंटू 2 1200 नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, क्रेडिटेड कर दिया, और सेकंड कॉल ₹1 की है, 600 रुपए हमने वहां पर रिसीव नहीं किए। सो दिस इज द एंट्री फॉर द सेकंड फोरफीचर इन केस ऑफ मिस्टर एस। सो नाउ द टाइम फॉर रीइश्यू एंट्री। रीइश्यू हमारे पास हुए हैं 800 शेयर्स। सो क्वेश्चन सेज दैट आउट ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 800 शेयर्स वर रीइश्यूड including ₹300 shares of Mr. A and balance of Sharad, balance of Mr. S. ठीक है, इस केस में हमारे पास as fully paid up for ₹6 per share। तो अब हमारे पास जो दो शेयर होल्डर्स हैं मिस्टर ए और मिस्टर एस, ठीक है, इनके 800 शेयर्स रीइश्यू हैं। तो पहले हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे। 800 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं एट ₹6 per share fully paid up, so that amount is to be debited which is received from the shareholders। 4,800 रुपए हमने जब शेयर्स को इस बार फिर से इश्यू किए किसी और शेयर होल्डर को, तो ये 4,800 रुपए आए। अब क्योंकि हमने डिमांड की थी पूरे ₹10, लेकिन हमने रिसीव किए ₹6, तो ₹4 का डिस्काउंट हमने फोरफीचर के टाइम उनको दिया, तो वो हो गया 800 इंटू 4 डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, दैट इज 3,200, एंड बिकॉज द शेयर इज टोटली फुल्ली पेड अप, so 810 rupees 8,000 would be credited to share capital account. अब last entry of the sum, which is share forfeited account debit to capital reserve, being the capital profit on the reissue of shares. लेकिन स्टूडेंट्स इसमें अब यहां पर ट्विस्ट आ गया। यहां पर दो शेयर होल्डर्स हैं मिस्टर ए और मिस्टर एस, और इन दोनों के शेयर्स ही पार्शियल रीइश्यू हो रहे हैं। सो वी विल हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर working note in this case where we have to calculate the partial allotment or partial amount which we have received on both the shares. So just let's solve this particular part. So ये हमारे पास आ गया working note हमारा,
जहां पर मिस्टर ए और मिस्टर एस ये दोनों शेयर होल्डर हैं, और क्योंकि दोनों के ही पार्शियल री इशू है केस है, तो हमने ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, शेयर्स फोरफिटेड, अमाउंट फोरफिटेड, शेयर री इशूड, इसको भी यूज करने शुरू देखेंगे हम लोग कैसे यूज करते हैं। इन तीनों अमाउंट्स को हमने लिखा। शेयर फोरफिटेड मिस्टर ए के हैं 500, तो मिस्टर एस के हैं 600। अमाउंट फोरफिट जो हुआ था ए के केस में वो था ₹3,500 और मिस्टर एस के केस में वो था 4,200 रुपए। और शेयर जब रीशू हुए हैं आउट ऑफ 800, 300 रीशू हुए मिस्टर ए के और बाकी 500 रीशू हुए मिस्टर एस के। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड proportionately on 800 shares in case of Mr. A as well as Mr. S. तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, दैट इज शेयर्स फोरफिटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट फोरफिटेड इनटू शेयर री इशूड। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, मिस्टर ए के केस में आता है शेयर फोरफिटेड हमारे पास हुए थे 500, अमाउंट फोरफिट हुआ था मेरे पास। So the formula is amount forfeited divided by shares forfeited into share reissue. Amount forfeit हुआ था 3,500, शेयर forfeit हुए थे 500 into share reissue हुए 300, प्लस इन केस ऑफ मिस्टर एस कितना proportionate amount हमारा रिसीव हुआ होगा। Amount forfeited 4,200 divided by share forfeited 600 into share reissue 500. That's calculated. So this is 7 into 300, 2,100 received from Mr. A proportionately on 300 shares, और Mr. S के मेरे पास आए होंगे 3,500. So 5,600 is the proportionate amount received in case of reissue of Mr. A and S, minus the discount which we had issued to the new shareholder while reissuing. That was 3,200 जो हमने शेयर रीशू की एंट्री में भी डेबिट किया था शेयर फोरफीचर में 3,200 रुपए। तो नाउ 56 माइनस 3,200, सो हमारे पास क्या आंसर आता है इस केस में, 2,400 इज माय प्रॉफिट ऑन री इशू। सो दिस ये अमाउंट जो हमने किया था इसको माइनस करना है। 5,600 हमने इस फॉर्मूले को यूज करके देखा कि हमने निकाला है, जो रिसीव किया है माइनस 3,200, सो ₹2,400 इज माय प्रॉफिट ऑन री इशू। So this was the first sum जो हमने देखा। कैसे इसको सॉल्व करना है, अगर हमारे पास दो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों के शेयर्स फोरफिट होते हैं और आगे जाकर दोनों के शेयर रीशू हो रहे हैं, दोनों केस में ही अगर पार्शियल रीशू है। मोर ओवर हम देखा है इसमें कि अगर हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है और उस पर प्रीमियम है, और कैसे हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पहले यूज करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कुछ बैलेंस बच जाता है तो टुवर्ड्स प्रीमियम। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं और एसपीआर की जो अमाउंट फोरफीचर के टाइम डेबिट करते हैं वो गलत निकल के आती है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन अगेन आई एम आस्किंग यू टू आप यू कैन पुट द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इफ यू लाइक सो फार तो यू कैन प्रेस द लाइक बटन।